Hello friends, welcome back to the series of lecture. I am Advocate Gaurav Singh Adana at Delhi High Court and Supreme Court. Also legal consultant providing coaching online, offline also. Okay, this is the 17th lecture of the CRPC. In this series, we are continuing with the topic occurrence report. So up to now we had seen the section 157, 158 and 159. Now we are continuing with the difference between the order of 159 and order of 156, clause 3. Okay. That is the order given by the judicial magistrate under section 159 and order of the 156 clause 3 by the judicial magistrate. What is the difference between the last lecture we had left here only? So the first difference between the one section order given in section 159 by judicial magistrate and section 156 clause 3 is that under section 159 the order given by the judicial magistrate is only after the फाइलिंग ऑफ FIR. जब पुलिस ऑफिसर कह देता है दैट आई एम नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द केस. Okay, when police officer refuses to investigate the case. But here in 156.3 the order is given before filing of the FIR, except in one case where the FIR is lodged and the police officer is not investigating properly or carelessly investigating the case carelessly. In that case, the under 156 clause 3 the order is passed after filing of the after lodging the FIR. This is the first difference. The second difference is that the under section 159 order is given only when the police officer said that I am not investigating. इसमें बताया था मैंने. And but here in 156 clause 3 the while on the other hand under 156 clause 3 इन्वेस्टिगेशन एंड FIR के लिए दोनों के एक साथ ऑर्डर भी हो सकता है, प्लस व्हेन द पुलिस ऑफिसर FIR तो हो गई है और पुलिस ऑफिसर केयरलेसली इन्वेस्टिगेट कर रहा है तब उसके लिए भी ऑर्डर हो सकता है. ओके, दोनों चीज के लिए हो सकता है. पहले तो हो सकता है हमारा FIR और इन्वेस्टिगेशन के लिए दोनों के लिए ऑर्डर कर दे, और अगर FIR हो रखी है और केयरलेसली इन्वेस्टिगेट कर रहा है तब उसके लिए भी ऑर्डर हो सकता है. दिस इज द सेकंड डिफरेंस. द थर्ड डिफरेंस इज दैट इन 159 प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ऑर्डर भी हो सकता है कोर्ट के द्वारा. ओके, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कैन बी ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट, while on the other hand under 156 clause 3 there is no question of preliminary inquiry. Okay, fourth difference is that in 156 clause 3 में जब कंप्लेंट लेकर जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, देन अंडर 190 के क्लॉज 1 के क्लॉज ए और सी में जब कंप्लेंट लेकर जाता कंप्लेनेंट या फिर इंफॉर्मेशन से आती है कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, देन विदाउट टेकिंग कॉग्निजेंस जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर अंडर 156 clause 3 for investigation to the police officer, while here in this 159 such situation not arose. Why? क्योंकि यहाँ पर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आता है वो आफ्टर FIR आता है. ओके ओके, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकता है. इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर करेगा तो पहले FIR लॉन्च करेगा फिर इन्वेस्टिगेट करेगा इस सिचुएशन में, जबकि यहाँ पर FIR ऑलरेडी डन होती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए मना करता है तब ऑर्डर होती है 159 में. ओके, द फिफ्थ डिफरेंस बिटवीन 159 एंड 156.3 इज दैट अंडर 156 ए पार्टी कैन फाइल एन एप्लीकेशन. किसके लिए? FIR लॉज. अगर उसकी FIR नहीं ली जा रही तो FIR लॉज कराने के लिए एंड फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर 156.3 के अंडर एप्लीकेशन दे सकती है फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर लॉजिंग FIR, बिकॉज एप्लीकेंट हैज द लोकस स्टेंडाई दैट इज कॉज ऑफ एक्शन. ओके, उसके पास कॉज ऑफ एक्शन है, वो कर सकता है. ओके, वाइल अंडर 159 FIR तो ऑलरेडी हो चुकी है, पुलिस ऑफिसर मना कर देता है इन्वेस्टिगेशन में, तो ये पार्टी कैन नॉट फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 159 फॉर लॉजिंग FIR, क्योंकि FIR तो पहले हो चुकी है. यहाँ पे तो मना कर रहा है किसके लिए? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. ओके, अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मना भी कर रहा है, देन ऑल्सो पार्टी कैन नॉट फाइल द एप्लीकेशन. वाई? बिकॉज इट इज द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन. ओके, privileged communication between the police officer and the judicial magistrate. Okay, yeah, so a party cannot file an application under section 159, rather it is the privileged communication between the police officer and the judicial magistrate.
So we can say that 156.3 is much broader than the section 159. It is much broader. Why? Because in this 156 clause 3, the party could move an application for the lodging of the FIR and for investigation. And if the FIR is already lodged and the investigation is not proper, then he could move a application for the proper investigation. But 159 work only when the FIR is already lodged and the occurrence report is sent to the जुडिशियल मजिस्ट्रेट. जब अक्रेंस रिपोर्ट जाएगी तभी हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अक्रेंस रिपोर्ट जाएगी, तभी 159 वर्क करेगा. एंड द पार्टी इज नॉट हैविंग द लोकस स्टैंडर्ड cause of action to move an application if the police officer inform the informant that he is not going to investigate. तो 159 में वो एप्लीकेशन नहीं लगा सकता. He would go to 156 clause 3 only. पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन से मना कर दिया एंड आई वांट टू गेट द केस इन्वेस्टिगेट. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अक्रेंस रिपोर्ट एंड पुलिस रिपोर्ट. ओके, अक्रेंस रिपोर्ट इज जनरली a report from where the commencement of the investigation start. Okay, and the police report is the report, the final report given by the police officer where the investigation ends unless until there is a supplementary investigation is not going on. Okay, so we can say that occurrence report is always at the time of the commencement of the investigation just after the FIR is filed, whereas the police report is filed at the end of investigation in the form of final report of the investigation. अगर हम इसको डायग्राम में देखते हैं तो इस तरीके से लगेगा. ये यहाँ पर FIR लॉन्च हुआ. ओके, FIR हेयर ऑकरेंस रिपोर्ट फोर्थविथ सेंड किया हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को. हेयर ओनली द इन्वेस्टिगेशन starts. Okay, so the occurrence report is at the time of commencement of the investigation. Okay, while after investigation इधर चली इन्वेस्टिगेशन पूरी, लास्ट में पुलिस रिपोर्ट फाइल की तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर एंड हो गई. पुलिस रिपोर्ट इज फाइल्ड when the final report, it is the final report and filed when the investigation end until and unless there is supplementary investigation going on. Okay, तो वहाँ पे सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगेगी, मेन चार्जशीट ये हो जाएगी. ओके, द सेकंड डिफरेंस बिटवीन पुलिस रिपोर्ट, इन पुलिस रिपोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू कॉग्निजेंस. ओके, जब पुलिस रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट होती है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता मामले को अंडर सेक्शन 191 के क्लॉज बी में. ओके, एंड ऑन ऑकरेंस रिपोर्ट देयर इज नो कॉग्निजेंस एज सच. ओके, कोई कॉग्निजेंस पे नहीं लिया जाता जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा. किसमें? अक्रेंस रिपोर्ट में. ओके, बिकॉज इन द अक्रेंस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट हैविंग ओनली 3 ऑप्शंस. या तो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर दे उसको FIR लॉक करके, या फिर इंक्वायरी कर ले, इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर दे उसको पुलिस ऑफिसर को, या फिर खुद ऑर्डर दे दे कंप्लेनेंट को. ऑर्डर कर सकता है कि कंप्लेंट फाइल करे और फिर कंप्लेंट जब आएगी, अगर मर्जी है उसकी कंप्लेनेंट की, कंप्लेंट लेके आता है तब कॉग्निजेंस लेगा, बट इधर कॉग्निजेंस नहीं लेगा. ओके, और थर्ड वन इज टू रिमेन साइलेंट और एग्री विद द पुलिस ऑफिसर दैट ही इज नॉट going to investigate. There is no need of investigation in this case. So we had completed one topic in the FIR, that is occurrence report. Now there are other topics of FIR, various aspects of FIR. Let's see it one by one. These are the smaller topics. First one is why FIR called FIR. FIR क्यों कहलाती है, and which information will be considered to be FIR. So the answer of it is since after commencement of offense, जब भी कोई offense होता है तो first information दी जाती है. Okay, first information reaches to police officer, so it is called FIR. Okay, and which information will be considered to FIR. Okay, अब FIR इसलिए
कहते हैं इसको क्योंकि दिस इज द फर्स्ट आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द ऑफेंस द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज सेंट टू द पुलिस ऑफिसर. ओके, since it is the first information, so it is called the first information report. But when first information reaches to the police officer, and after reaching it to the police officer, when it is recorded, okay, the first information reaches to police officer which is in recorded form, then it is called first information report. Okay. सो अगर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अगर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन किसी ने टेलीफोन कर दिया कि साइड वाले हाउस में हमारा मर्डर हो गया, इधर ये कोई हाउस है, उसने कहा कि यहाँ पे गोली चलने की आवाज़ आई है, मर्डर हुआ है, इतना कहकर टेलीफोन काट दिया कि हाउस नंबर सो एंड सो एक मर्डर हो गया है. ओके, तो इफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑन टेलीफोन तो हो गई यहाँ पे टेलीफोन पे दे दी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, बट ये जो इन्फॉर्मेशन ये डिटेल फॉर्म में नहीं है कि मैं कौन बोल रहा हूँ, क्योंकि एफआईआर जब भी करते हैं तो उसमें डिटेल रहती है कि हु इज़ द इन्फॉर्मेंट, उसका नाम क्या, उसके पिताजी का नाम क्या, वलीयत क्या है, कहाँ का निवासी है, फ़ोन नंबर भी इवन रहता है उसमें कि क्या नंबर है उसका. ओके, तो वो सारी डिटेल्स इसमें नहीं है. और मैंने क्या सुना था, और एकदम जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ था अपने घर में, मेरे को गोली चलने की आवाज़ आई, उधर से भागता हुआ एक आदमी व्यक्ति दिखा, तो ये सारी डिटेल्स उस समय लॉज नहीं हुई. उसने क्या कहा कि हाउस नंबर सो एंड सो में मर्डर हो गया और फ़ोन काट दिया. ओके, सो इट इज़ नॉट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, इट इज़ नॉट सफिशियंट टू लॉज द एफआईआर टू रिकॉर्ड इट. ओके, तो उधर क्या करेगा पुलिस ऑफिसर, डेली डायरी में डीडी एंट्री करके और उधर से निकलेगा और जाएगा ऑन द स्पॉट और वहाँ पे जाके इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा. अगर कोई होता है तो फिर वो अपने फॉर्म में करेगा. तो हेयर जब जाता है और उधर इस पते पर जाता है तो उधर वो सेकंड इन्फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो हमारे टेलीफोन पे मिल गई, सेकंड इन्फॉर्मेशन हो जाती है इज इन डिटेल्ड, बट ये डिटेल्ड फॉर्म में. ओके, so it is called, this second information is called FIR. Okay, why? Because it is considered to be the first information, because this information is in recorded form. So we can say that the information firstly recorded in the written form. Okay, the information which is recorded firstly, it is called the first information report. Okay, तो इधर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो टेलीफोन से हुई थी, बट दिस इज नॉट इन रिकॉर्डेड फॉर्म. तो दोनों जरूरी है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन द इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में होनी चाहिए. तो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी जब रिकॉर्डेड फॉर्म में हो जाएगी. ओके, बिकॉज इट इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन विच इज रिकॉर्डेड जब स्पॉट पे जाके. वैसे सेकंड इन्फॉर्मेशन है, बट रिकॉर्डेड फॉर्म में वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है. सो एनी इन्फॉर्मेशन विच इज रिकॉर्डेड in recorded form firstly is called the first information report. Okay, but later on in a topic we would study FIR. जो टेलीफोन पे इंफॉर्मेशन मिलती है उसको अगर डिटेल में मिलती है टेलीफोन पे इंफॉर्मेशन तो उसको हम उस पर FIR लॉन्च कर सकते हैं उसमें. बट जो इन्फॉर्मेंट का जो सिग्नेचर है वो लेटर ऑन लेना पड़ेगा. ओके, तो उसकी केस बेस है वो देखेंगे हम बाद में. ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये हमने देख लिया FIR इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट टू पुलिस, ओके, व्हिच इज इन रिकॉर्डेड फॉर्म. ओके, आफ्टर दैट FIR thus forthwith sent to the report to the judicial magistrate, that is occurrence report copy. ओके, कॉपी ऑफ FIR हमारी भेजी जाती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को forthwith, that is occurrence report. बट here is what is the difference, जो FIR with endorsement दी जाती है कि whether he is going to investigate it or not, or whether he is investigating, then who is the police officer who is appointed as the investigating officer in the case. Okay, that details are given in the endorsement, and that is the main difference between the occurrence report and the FIR. नाउ इसके बाद जो टॉपिक थे, क्वेश्चन लिखा था हमने कि इज द इन्वेस्टिगेशन डिपेंड ऑन द FIR, क्या इन्वेस्टिगेशन हमारी FIR पर डिपेंड करती है? द आंसर इज नो. ओके, एंड फॉर मेंस आल्सो द आंसर इज नो, बट देयर वी वुड also narrate
द पुलिस रूल्स। ओके, तो पुलिस रूल्स की वजह से हमारी FIR लिखनी जरूरी होती है। इन दैट वी वुड explain in the mains. Okay, for PT the answer is no. Mains also no, but their police rules को भी explain करेंगे इस वजह से, जिसकी वजह से हमको FIR लिखनी जरूरी होती है। Now the next topic is what is zero number FIR. What is zero number FIR? Okay, जीरो नंबर FIR के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन नंबर 2, ये पुलिस स्टेशन नंबर 1। ओके, कोई ऑफेंस हेल्ड हुआ, ऑकर्ड हुआ इधर। ओके, और वो ज्यूरिडिक्शन पड़ता है PS2 के में, पुलिस स्टेशन नंबर 2 के ज्यूरिडिक्शन में। ओके, अब वो व्यक्ति जाता है इधर और पुलिस स्टेशन नंबर 1 में और बोलता है कि FIR लॉन्च कर लो। ओके, अब जैसे पिक्चर वगैरह हम दिखा देते, बोलते हैं कि इधर से भागो, ये करो, और दूसरे पुलिस स्टेशन में जाओ, हमारा ज्यूरिडिक्शन नहीं, हम लॉन्च नहीं करेंगे। तो उस तरीके का रूल अब नहीं है। और अगर किसी के पास एविडेंस है पर्टिकुलर कि इस तरीके से भगाया था और तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स की जा सकती है इस पर्टिकुलर ऑफिसर के। तो रूल ये है बेसिकली, अगर उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं भी आता, कोई ऑफेंस हुआ, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, तो उसको अपनी FIR लॉन्च करनी पड़ेगी। अब वो जो FIR लॉन्च करेगा उसमें क्या करेगा, जो FIR लॉन्च करेगा उसमें FIR लॉन्च करने के बाद जो नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन अगर जरूरी है उसी टाइम, तो उधर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, या फिर उसको लगता है कि देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग द नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन, तो वो डायरेक्टली उस FIR को ट्रांसफर कर देगा जिस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में आता है। ओके, अब ये जो FIR का नंबर देगा जिसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, उधर लॉन्च किया FIR उसने, तो जैसे 105, 106, 107 ये नंबर देते हैं। अब कोई आती है न्यू FIR, तो बात की, तो इधर जो नंबर दिया जाएगा वो जीरो नंबर दिया जाएगा, FIR का नंबर दिया जाएगा, जीरो नंबर FIR दिया जाएगा। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? जीरो नंबर क्यों दिया जाएगा? क्योंकि हर एक नंबर पे जो जितने भी नंबर की FIR होंगी उस पुलिस स्टेशन की, तो फिर उसको पुलिस रिपोर्ट भी लगानी पड़ेगी। ओके, तो अब वो पुलिस रिपोर्ट में अगर नंबर लगा दिया उसने, तो उसमें कहा कि उसमें पुलिस रिपोर्ट में ये लिखे कि भाई देयर इज नो ज्यूरिडिक्शन since I have this police station is not having the jurisdiction of the offense which is occurred, and it is not occurred in the jurisdiction of my police station, that's why I have not investigate the case। तो उससे अच्छा है कि वो जीरो नंबर डालकर उसको और FIR को ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि उसको पुलिस रिपोर्ट ना लगानी पड़े, क्योंकि वो उसके जुरिडिक्शन में नहीं आता। ओके, बेसिकली ये जो जीरो नंबर भी नंबरिंग भी नहीं करता उस FIR की, उस FIR को लॉन्च करता है और उसमें नंबरिंग ही नहीं करता, पुलिस ऑफिसर नंबरिंग ही नहीं करता। और उस जो नंबरिंग नहीं करता, ऐसी FIR को जिसकी नंबरिंग नहीं होती, उसको कहते हैं हम जीरो नंबर FIR। FIR ओके, सो इफ द FIR goes in police station of wrong jurisdiction, जैसे इसमें गया था, then the police officer write the FIR, लिखेगा जरूर because he is bound, बट उसको नंबरिंग नहीं देगा। राइट द FIR विदाउट नंबरिंग दैट FIR, एंड फिर उसको ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर कब किस तरीके से करेगा? अगर नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन है तो नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, अन्यथा नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन उसको लगती है कि नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा दैट FIR ओके टू द पुलिस स्टेशन इन whose jurisdiction the offense is occurred। okay, later on to the police station having jurisdiction, and there this FIR again to be write, उधर दोबारा लिखी जाएगी FIR एंड नंबर्ड। ओके, तब उसकी फाइनल रिपोर्ट FR पुलिस रिपोर्ट लगेगी। ओके, और जो FIR हमारा जो पुलिस रिपोर्ट, FIR की जो पुलिस रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट इज नॉट ए प्रिविलेज डॉक्यूमेंट, क्योंकि जो पुलिस रिपोर्ट है, चार्जशीट वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे प्रोसिक्यूशन को दी जाती है, राइट होता है उसका। और जबकि हमारी जो ऑकरेंस रिपोर्ट है, ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। दिस इज ऑल्सो वन डिफरेंस बिटवीन द ओके, जो हमने डिफरेंसेस देखे हैं अभी, इसमें डिफरेंस बिटवीन ऑकरेंस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, इसमें ऐड कर लेना। ऑकरेंस रिपोर्ट इज प्रिविलेज डॉक्यूमेंट एंड पुलिस रिपोर्ट इज नॉट ए प्रिविलेज डॉक्यूमेंट। और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए जीरो नंबर FIR, बिकॉज नाउ इट इज नेसेसरी टू रिकॉर्ड द ऑफेंस, चाहे वो किसी और जुरिडिक्शन के पुलिस स्टेशन में हुआ हो। तो इसको किसी को टाल कर और ये नहीं कह सकते हम कि भाई हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता, FIR
वहाँ पर लॉज कराओ। तो विदाउट नंबरिंग दैट FIR, the police officer must lodge the FIR and he would transfer it to the another police station. Now let's see the another topic, anti-timed FIR. What is anti-timed FIR? मान लेते हैं कोई ऑफेंस ऑकर हुआ इस टाइम पर, ओके, ऑफेंस डन हियर दिस टाइम, ओके। मान लीजिए सुबह 11 बजे ऑफेंस हुआ 11 AM, ओके, और जो FIR 9 AM, FIR में टाइम है 9 AM का, ओके। तो जो FIR समय से पहले लिख ली जाती है, जिसमें ऑफेंस होने की समय बाद में और जो FIR लिखने का समय पहले है, then that FIR is called anti-timed FIR, okay. FIR lodged before the offense occurred, okay, और ऑफेंस यहाँ पे हुआ है और FIR यहाँ पर लिख ली गई है, ओके। तो इस काइंड की सिचुएशन में, सच काइंड ऑफ सिचुएशन, the court will always examine the time of occurrence of offense, okay. तो जब भी कोई FIR वगैरह जाती है या फिर कोर्ट जब ट्रायल लेता है तो उधर कोर्ट ऑलवेज एग्जामिन द टाइम ऑफ ऑकरेंस ऑफ ऑफेंस एंड टाइम ऑफ, इट इज अ ड्यूटी ऑफ कोर्ट, ओके, टाइम ऑफ FIR। तो FIR का क्या टाइम था और ऑकरेंस ऑफ ऑफेंस का क्या था टाइम, ओके। अगर उसमें डिस्क्रिपेंसी होती है, ओके, उन दोनों में मतभेद होता है इन दोनों चीज में, तो कोर्ट में आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन, सीक एन एक्सप्लेनेशन फॉर द फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर। तब उसमें क्या, अगर एक्सप्लेनेशन इस तरीके की हो कि जायज हो, कि एक्सप्लेनेटरी हो इटसेल्फ में, जैसे कि भाई ऑफेंस हुआ था हमारा 11 बजे, ओके, और जब हम थाने गए थे तो हमारी थाने की घड़ी बंद थी, ओके, तो उस टाइम 9 बज रही थे उसमें, तो इस वजह से हमने थाने की घड़ी से या पुलिस स्टेशन की वॉच से हमने जो लिखा था टाइम, इस वजह से क्या कहते हैं जो टाइमिंग है हमारी उसमें FIR में वो गलत हो गई, ओके। वैसे नाउअडेज सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, तो देयर इज वेरी लेस पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन स्टेट्स लाइक दिल्ली वगैरह, और भी स्टेट्स में जिनमें ऑनलाइन वगैरह हो गया था, बट देयर आर चांसेस, ओके। अगर एक्सप्लेनेटरी और भी कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से एंटी टाइम्ड FIR हो जाए, बट मेन मोटिव ये है कि अगर मेन थिंग इज दैट कि अगर एक्सप्लेनेटरी है, अगर एक्सप्लेनेशन दे देता है कि जिसने FIR लॉन्च किया है अगर पुलिस ऑफिसर है, कि इस वजह से, इस कारण से ये जो टाइमिंग है ये पहले किया और ऑफेंस का टाइमिंग बाद में, और एक्सप्लेनेटरी होता है वो और सेटिस्फाइड हो जाती है कोर्ट, तो उसकी जो वैल्यू है बराबर रहेगी, ओके। तो देन इट कैन बी एक्सेप्टेबल, तो वो FIR हमारी एक्सेप्टेबल रहेगी, अदरवाइज नॉट, ओके। अदरवाइज वो FIR हमारी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ओके। अब एक्सेप्टेबल नहीं होगी तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, ओके। अब उसकी वैल्यू नहीं होगी तो वो कॉरोबरेट नहीं करेगी किसको, हमारे जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है, दैट इज जो कंप्लेनेंट है, ओके। अब एंटी टाइम FIR क्या होती है, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जाता है हमारा A पुलिस स्टेशन में जाकर बोलता है कि आज रात को एक मर्डर होने वाला है 10 बजे, और उधर रात को 10 बजे होने वाला मर्डर, और पुलिस स्टेशन में क्या वो लॉज हो जाएगी, FIR लॉज करेगा पुलिस स्टेशन में? द आंसर इज नो, पुलिस ऑफिसर उस FIR को लॉज नहीं करेगा क्योंकि अभी ऑफेंस हुआ नहीं है, और FIR लॉज होती है किसी ऑफेंस से रिलेटेड। हाँ, अगर इसी सिचुएशन में ये कहे कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो उधर कॉन्स्पिरेसी के लिए तो FIR लॉज कर लेगा, पर ऑफेंस के लिए नहीं करेगा। और जो पुलिस ऑफिसर एक पेपर पे, ओके, पेपर पे लिख लेगा, डेली डायरी में लिख लेगा, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आई, या फिर पेपर में लिख लेगा, पेपर पर लिखकर उसके बाद उसका प्रिवेंटिव एक्शन तो ले सकता है उस चीज़ के लिए कि भाई 10 बजे मर्डर होने वाला है, उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन ले सकता है, बट दैट इज नॉट इंक्लूड और कंसिडर्ड एज इन्वेस्टिगेशन, दैट प्रिवेंटिव इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज द ऑफेंस इज नॉट अकर्ड। तो इन्वेस्टिगेशन तो ऑफेंस होने के बाद होती है। हाँ, अगर इसके प्रोस्पेक्टिव में देखें कि भाई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, तो कॉन्स्पिरेसी का तो ऑफेंस हो गया, ओके, देन FIR विल बी लॉज्ड अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेसी, और वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन चलती है तो जो एक्शन लेगा that would be considered in investigation, okay. One more point to say about FIR in there is FIR is not a privileged document, okay. I already told you
FIR हमारे प्रिविलेज डॉक्यूमेंट नहीं है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, 120 से अबव सेक्शन दे रखे हैं ऑल अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, नॉर इट इज ए प्रिज्यूम्ड डॉक्यूमेंट। ओके, प्रिज्यूम्ड डॉक्यूमेंट दे रखे हैं हमारे सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। जब हम पढ़ेंगे देखेंगे तो सेक्शन 80 में इंडियन एविडेंस एक्ट में कुछ प्रिज्यूम्ड डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, जैसे सेक्शन 164 164 के बयान वगैरह होते हैं जो CRPC में। ओके, तो जिसमें प्रिजम्पशन ये होता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ विच इज प्रॉपर्ली डन। ओके, तो जो डॉक्यूमेंट है 164 का, ये माना जाता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज प्रॉपर्ली डन। ओके, such kind of presumption cannot be done about the FIR that the FIR is properly recorded. Okay, it cannot be presumed that it is correctly written or correctly recorded. Okay, FIR. Next question in this topic is, can a child or lunatic lodge a FIR? Okay, so as a matter of reliability, as there would not be no discrepancy in the future. For that, whenever a offense held, the police officer look for an adult, so that there is no discrepancy in the FIR. Okay, but when we look for the section 118 of the Indian Evidence Act, okay, by virtue of section 118 Indian Evidence Act, if a child और अनसाउंड, ओके, अनसाउंड किस तरीके का, उस तरीके का कि जो रेगुलर इंटरवल्स, मतलब उसको दौरे पड़ते हैं पागलपन के, कि कुछ समय बाद तो वो ठीक है, साउंड है, और कुछ समय बाद वो अनसाउंड है। ऐसा नहीं कि जो परमानेंट अनसाउंड है, दैट वुड बी इडियोसी। ओके, तो उस तरह की सिचुएशन नहीं है। चाइल्ड और अनसाउंड जो पर्टिकुलर इंटरवल्स के लिए साउंड अनसाउंड होता है, ओके, और उसके साउंडनेस के टाइम पर वो अगर कोई ऑफेंस घटित हुआ उसके सामने, कैन बी कम्पिटेंट टू लॉज FIR, तो वो कम्पिटेंट होगा लॉज करने के लिए FIR। उसी प्रकार से कोई चाइल्ड 3 या 4 ईयर्स का है, ओके, ही इज एबल टू सी, स्पीक, ओके, सब चीज व्याख्या करने के लिए और बताने के लिए सब वो कैपेबल है। ओके, तो बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 118 इंडियन एविडेंस एक्ट, ही इज कैपेबल फॉर लॉजिंग FIR। ओके, ओके, इफ तो इस तरीके का चाइल्ड अगर 3-4 साल का है और वो कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कैपेबल टू स्पीक, तो वो FIR लॉज कर सकता है। ओके, competent to lodge FIR if that person is able to answer normally. Okay, और ऐसी सिचुएशंस में द वीडियोग्राफी ऑफ दोज स्टेटमेंट्स आल्सो डन, तो वीडियोग्राफी भी की जाती है ऐसी सिचुएशंस में। ओके, तो चाइल्ड कैपेबल अंडरस्टैंडिंग एंड अनसाउंड व्यक्ति कोई जो परमानेंट रिटायर्ड ना हो, इडियोसी ना हो, तो ऐसा इंटरवल्स में उसको साउंड हो, तो ऐसे व्यक्ति भी लॉज कर सकते हैं FIR। जैसा कि एग्जांपल ले लेते हैं, कोई H&W, हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा HS। ओके, घर में है, कोई व्यक्ति घुसा अंदर, HW का कत्ल कर दिया, HS जिंदा रह गया, पुलिस ऑफिसर आए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, HS मिला वहाँ रोता हुआ। ओके, इस सिचुएशन पुलिस ऑफिसर ने HS से पूछा, कौन बेटा ये कौन लगते हैं आप दोनों के? उसने कहा मम्मी पापा लगते हैं। कौन, किसने किया? एक व्यक्ति था, कोई एक अंकल जी आए थे, उन्होंने खिड़की में से कूदे, अंदर घुस गए और पापा को, मम्मी को चाकू से मार दिया, ये सोन और छीन झपट के ले गए। तो इस सिचुएशन में तो जो स्टेटमेंट HS देगा उसको रिकॉर्ड करके उसको ये FIR बना देंगे। अगर इस सिचुएशन में जो चाइल्ड है उसको ज़्यादा टॉर्चर नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती पूछ नहीं सकते, तो उस सिचुएशन में ज़्यादातर पुलिस ऑफिसर अगर कोई अडल्ट है तो अडल्ट को ढूंढता है। अगर अडल्ट नहीं मिलता है तो उसके स्टेटमेंट जो HS ने दिए हैं उसको FIR बनाकर FIR लॉन्च कर लेगा। ओके, नॉर्मली इन सिचुएशंस में वीडियोग्राफी कर सकता है जिससे परमानेंट हो जाए वो स्टेटमेंट्स कि भाई किस तरीके से, किस हाव भाव से दिए थे वो, तो वीडियोग्राफी कर सकता है। ओके, तो हेयर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए थे उसके HS के, तो रिकॉर्ड किए उसने पुलिस ऑफिसर ने स्टेटमेंट, और द पुलिस ऑफिसर इन लास्ट यूज दैट स्टेटमेंट टू लॉन्च द FIR के तौर पे उसको इस्तेमाल कर सकता है FIR लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डिले इन लॉजिंग FIR एंड इट्स इफेक्ट। बिफोर दैट वन पॉइंट इज दैट कि जब 0 नंबर FIR करते हैं तो वो इमीडिएटली ट्रांसफर करते हैं सेम डे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग,
तो जो अक्रेंस रिपोर्ट होगी तो वो पुलिस स्टेशन फाइल करेगा अक्रेंस रिपोर्ट जिसमें FIR लॉज होगी, ओके, जिसके जुरिडिक्शन में माना जाता ऑफेंस हुआ है, ओके, नॉट दैट पुलिस स्टेशन इन विच द 0 नंबर FIR इज लॉज्ड। बिफोर दैट वी वुड सी, जो काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि जो 100 नंबर पे हम कंप्लेंट करते हैं या फिर वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, ओके, कंट्रोल रूम में 100 नंबर होता है, हमारा कंट्रोल रूम का नंबर होता है, तो ये क्राइम प्रिवेंशन नंबर होता है कि कोई क्राइम हो रहा है या फिर उस समय हम 100 नंबर पर कॉल करते हैं जिससे तत्काल पुलिस सब सहूलियत हमको मिल जाए, तत्काल पुलिस आए और क्राइम को रोका जा सके। सो 100 नंबर इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, नहीं होते वो, जो 100 नंबर की पुलिस आती है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं होते, क्योंकि उसमें FIR लॉज होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है किसी पर्टिकुलर केस पे, ओके, तो यहाँ पे अपॉइंट नहीं हुआ, वो SHO ही करता है हमारा थाना प्रभारी, ओके। सो 1 डायल 100, अगर कोई व्यक्ति डायल करता है 100 नंबर फॉर इन्फॉर्मिंग एन ऑफेंस, देन द पुलिस केम, ठीक है, पुलिस आती है वहाँ पे एंड रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन, ओके, पुलिस स्टेशन अगर कोई ऑफेंस हो जाता है पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करती है ऑफ दैट एरिया, ओके, पुलिस स्टेशन ऑफ दैट एरिया, तब वहाँ पे FIR लॉज होती है, उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट होता है और इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, ओके। तो ये प्रोसेस थी 100 नंबर की। तो यहाँ पे अगर पुलिस ऑफिसर आता है 100 नंबर पे, कोई पुलिस आती है तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं होती। उसी प्रकार से एक डाउट, जो सेक्शन 3 है इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें जो डेफिनेशन है एविडेंस की, वर्ड उसमें जो वर्ड इंक्वायरी यूज हुआ है, इंक्वायरी कोर्ट के द्वारा की जाती है, तो वो उसका इंक्वायरी का जो CRPC में जो सेंस है, लिमिटेड सेंस है इंक्वायरी का, वो सेंस नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट में। उधर जो क्योंकि इधर जो CRPC में इंक्वायरी है वो ट्रायल से पहले की जाती है, ओके, बट जो इंक्वायरी उधर यूज हुआ है, वर्ड इंक्वायरी यूज हुआ है एविडेंस में, तो इंडियन सेक्शन 3 में एविडेंस में, तो वो इंक्वायरी ब्रॉडर सेंस में, ओके, वो इंक्वायरी हमारी बिफोर ट्रायल वाली इंक्वायरी की जा रही है अगर कोर्ट नोट डाउन कर रहा है एनीथिंग, और आफ्टर ट्रायल स्टार्ट्स उसके बाद कोई इंक्वायरी कर रहा है, तो वो दोनों इंक्वायरी इसमें आती है इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो इन दोनों इंक्वायरी में डिफरेंस जो CRPC में यूज हुआ और इंडियन एविडेंस एक्ट में यूज हुआ, ओके। वन मोर पॉइंट, 100 नंबर पे अगर कोई कॉल करता है और उसको डिटेल में पूरी डिटेल्स दी जाती हैं और लिखा जाता है, तो दैट could be note down and convert into the FIR, बट इतनी डिटेल में सारी चीज़ अगर वो है तो वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इतनी डिटेल में ना तो कोई बताता ना पूछता इतना, ओके, बट अभी तक कुछ ना इसके ऊपर कोई जजमेंट, ना तो जजमेंट्स हैं इसके ऊपर और ना ही कोई और प्रोसीडिंग्स की गई हैं ऐसी कि 100 नंबर पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई उससे FIR लॉन्च की गई है। Now come back to the topic, delay in lodging FIR and its effect. Okay. So in this topic we can say that otherwise it is normally expected that when an offense has been committed, the FIR will be lodged promptly. तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जब भी हमारा कोई ऑफेंस होता है तो FIR हमारी लॉज हो तुरंत, प्रॉम्प्टली बाय द विक्टिम और बाय द विटनेसेस, कोई भी करा सकता है, या तो विक्टिम करा सकता है खुद और बाय द विटनेसेस, कोई विटनेस हो नॉर्मली, वैसे थर्ड पर्सन भी करा सकता है FIR, ओके, FIR तक कोई थर्ड अननोन पर्सन भी करा सकता है, बट नॉर्मली जो जाते हैं हम वो प्रेफर करते हैं विटनेस को करते हैं या फिर विक्टिम खुद को करते हैं, विक्टिम भी एक विटनेस ही होता है, बाय द विक्टिम और बाय द विटनेस। If there is delay in the lodging of the FIR, the court may seek an explanation. अगर डिले होती है हमारी lodging of FIR में तो कोर्ट explanation मांग सकता है for the delay, and if the proper explanation has been given, then delay will not have any material effect. Okay, तो FIR होती है, कोर्ट में केस चलता है, FIR delayed है, okay, और ऑफेंस पहले हुआ काफी दिन पहले, कोर्ट पूछता है नॉर्मली कि why there is delay in FIR, okay, और उसके बारे में अगर कोई मटेरियल आंसर दे दिया या फिर कोई आंसर दिया, जायज आंसर दिया जो एक्सप्लेनेटरी है, तो उस डिले पर कोई मटेरियल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके, बट इफ द डिले इज नॉट सफिशिएंटली एक्सप्लेन, अगर डिले को सफिशिएंटली एक्सप्लेन नहीं किया जाए, देन द कोर्ट में रेज एंड सस्पिशन, तो कोर्ट वहाँ पे एक संदेह पैदा हो जाता है कोर्ट की नज़र में, ओके, अबाउट द FIR, ओके।
about the FIR and about the role of the informant also. Okay, both things are come into suspicion in the eye of the court, and it may not attach a proper evidentiary value, और फिर उनकी वो evidentiary value नहीं होती जो normally होनी चाहिए to the FIR और to the testimony of the witness. Okay, जो informant होता है FIR लॉन्च करा रहा है, दोनों की वो evidentiary value नहीं होती जो होनी चाहिए. ओके, तब उधर उसको कॉर्पोरेटिंग के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता है FIR को. अदर थिंग्स मे बी यूज्ड फॉर द कॉर्पोरेटिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेस. ओके, अब मान लेते हैं कि सफिशिएंटली एक्सप्लेन किस तरीके के, मान लेते हैं एग्जांपल कि एक घर में चोरी हुई. ओके, एक घर में चोरी हुई, उसके बाद चोरी हुई, वो FIR लॉन्च कराने जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटलाइज हो गया. 25 दिन के बाद वो डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, कोई और था नहीं FIR लॉन्च कराने के लिए. 25 दिन बाद वो FIR लॉन्च कराने गया, तो अभी एक्सप्लेनेटरी हो गया, उसने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अपने जो हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह के दिखा दिए, और उससे पहले एक दिन पहले चोरी हुई थी, वो सारी चीज़, अब वो मैटर उस ओके सफिशिएंटली एक्सप्लेन हो गया, तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो एविडेंस वैल्यू की FIR पे, ना टेस्टिमनी ऑफ द इन्फॉर्मेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने जो कोर्ट का सस्पेंशन है वो क्लियर कर दिया. ओके, हाउएवर इट हैज़ been held in State of Punjab versus Gurmeet Singh and others 1996 सुप्रीम कोर्ट. ओके, तो एक केस है, इसमें क्या हेल्ड हुआ था दिल्ली ने FIR में, पर्टिकुलर केस दैट इन केसेस ऑफ रेप. अब सिचुएशन ये एक्सेप्शन है, इन केसेस में क्या हुआ, इन केसेस ऑफ रेप और अदर सेक्सुअल ऑफेंसेस, या फिर अदर सेक्सुअल ऑफेंसेस, खाली रेप नहीं, अदर सेक्सुअल ऑफेंसेस भी इंक्लूडेड है. द डिले इन लॉजिंग ऑफ द FIR, जो lodging of FIR in delay is self-explained. Okay, delay in lodging of FIR is self-explained. इसमें explanation की जरूरत नहीं पड़ती. क्यों? The fear element, because the fear element and the societal stigma, जो लोगों में क्या बात बनेगी, क्या होगा, FIR करने जाऊँ या नहीं जाऊँ, कंप्लेंट करूँ नहीं करूँ, लोगों को पता पड़ेगा तो क्या होगा, इस तरीके की जो सोसाइटल स्टिग्मा और फियर एलिमेंट होता है, वो इस तरीके फियर एलिमेंट अटैच टू द ऑफेंसेस, that kind of offenses. Which kind? Sexual offenses, rape offenses. Okay, that offenses may per se cause the victim to file the FIR with a delay. तो इसी कारणवश वो पर से हम मान लेते हैं cause the victim to file an FIR with a delay. तो जो डिले है FIR में इसी वजह से हो जाता है. ओके, सो in the state of Punjab, in this case versus Gurmeet Singh and others, this case talks about the cases of the rape only, but it also covers the other sexual offenses. 377 के जो offenses हैं, that also covered by this judgment only. Okay, ये theft वाला एग्जाम्पल बता दिया, एक्सीडेंट हो जाता है, थेफ्ट होती है और उसके बाद डिले होता है FIR में, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा. ओके, इन सर्टेन केसेस जैसे रेप और इंसेस्ट के बारे में ये जजमेंट लगवाया, जो इंसेस्ट होते हैं, इंसेस्ट वाले केस होते हैं, रेप इन ए फैमिली विद अंकल कर रहा है किसी भतीजी का, या फिर सच डॉटर, फादर कर रहा है डॉटर का, या फिर ब्रदर, क्लोज रिलेशनशिप्स में जो रेप होते हैं, दैट काइंड ऑफ रेप. तो इसमें अगर पता पड़ता है, जैसे मदर को पता पड़ा और बच्ची छूटी, या फिर मदर ने डिले किया FIR लॉन्च करने में, उस काइंड ऑफ सिचुएशन में, तो उसमें रहता है कि, या फिर अदर काइंड ऑफ रेप की भाई सोसाइटी से हम अलग हो जाएंगे, अलग नज़रों से देखेगी या बात करेगी या हमको टॉलरेट अवॉइड करेगी. ओके, तो अवॉइड करेगी, उस डर से हमारा डिले होता है FIR में. दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट, कि इनमें एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा जाता कोर्ट के द्वारा. ओके, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन टू बी आस्क्ड इन डिले इन FIR इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन. रेप समटाइम इट टेक्स मोर टाइम टू कम आउट ऑफ मेंटल ट्रॉमा. तो मेंटल ट्रॉमा होता है लोगों का, तो जैसे इसमें इंसेस्ट वाले में केसेस में जो फैमिली क्लोज रिलेशनशिप में, उसको एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और फिर सोचते हैं कि सोसाइटी में क्या बात होंगी और उसकी फैमिली पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उस काइंड ऑफ सिचुएशंस को डील करने के लिए तो काफ़ी टाइम लग जाता है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड कंटिन्यू व्हाट इज द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ द FIR. Thank you for watching lecture.